ایولن ٹرین سے آتر اور اپنے آبائی شہر کی سرد آغوش میں قدم رکھا۔ ہوا میں گیلی مٹی اور صنوبر کی سوئیوں کی ہلکی سی مہک تھی، ایک ایسی خوشبو جسے وہ شاید بھول چکی تھی جب تک کہ آج اسے دوبارہ محسوس نہ کیا۔ مگر کچھ تھا عجیب سا۔ اسٹیشن پر ایک غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی، سوائے دیوار پر لگے ایک پرانے گھڑیال کی ٹک ٹک کے اور دور کہیں فریٹ کاروں کے پٹریاں بدلنے کی گونج کے۔ ایولن نے اپنے سوٹ کیس کے ہینڈل کو مضبوطی سے تھاما اور خالی بینچوں اور سر کے اوپر جھلملاتی فلورسینٹ لائٹس کی طرف نظر دوڑائی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ قصبہ سانس روکے اس کی واپسی کا منتظر تھا۔ اسے واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ خط میں یہی لکھا تھا، گھر مت آنا۔ وہ سادہ سفید کاغذ پر ٹائپ کیے گئے 5 سادہ الفاظ بغیر کسی پتے کے چپکے سے اس کے میل باکس میں ڈال دیے گئے۔ شروع میں تو ایولن نے اسے کسی مذاق غلطی سمجھ کر نظر انداز کر دیا، شاید کسی اور کے لیے تھا۔ مگر جتنی دیر وہ ان سیاہ حروف کو دیکھتی رہی اتنی ہی بے چینی اس کے دل میں بڑھتی گئی۔ یہ خط کس نے بھیجا اور کیوں؟ تجسس اور شاید تھوڑی سی ضد غالب آ گئی۔ اب جب وہ مدھم سے ولف کریک میں خوش آمدید کے بورڈ کے نیچے کھڑی تھی، وہ سوچنے لگی کہ کہیں اس نے غلطی تو نہیں کی۔ ایوی، ایک آواز نے اس کی سوچوں کا سلسلہ توڑ دیا، اونچی اور مانوس۔ مڑ کر دیکھا تو میگی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، بازو پھیلائے۔ میگی میں ہائی اسکول کے زمانے سے زیادہ فرق نہیں آیا تھا، اب بھی چھوٹے قد کی، اب بھی بڑے بڑے سویٹرز پہنے جو اس کے جسم پر ڈھیلے پڑتے تھے، لیکن اس کی آنکھوں کے کناروں پر وہ لکیریں الفابیر آئی تھیں جو پہلے کبھی نہ تھیں۔ وہ لکیریں جو برسوں خبریں دوڑنے اور کلاس کترانے کے بجائے محنت کرنے سے آتی ہے۔ تم واقعی آ گئی، میگی نے اسے زور سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا شاید تم نہیں آؤ گی۔ ہاں خیر۔ ایولن نے ہنسی زبردستی نکالی، اس بے چینی کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے جو اس کے گرد مکڑی کے جالے کی طرح لپٹی ہوئی تھی۔ تمہاری دلکش دعوت کو ٹالنا مشکل تھا۔ وہ دونوں پارکنگ لاٹ کی طرف چل پڑیں جہاں میگی کی پرانی سیڈان کھڑی تھی۔ جب وہ ولف کریک کی بل کھاتی گلیوں سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے، ایولن نے غور کیا کہ سب کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے۔ شاید شہر نہیں بدلا تھا، وہ خود بدل گئی تھی۔ وہ خوبصورت گھر جن کی کھڑکیوں میں پھولوں کے ڈبے اور لکڑی کی باڑیں تھیں، اب چھوٹے اور کم دلکش لگ رہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ پارک بھی جہاں وہ بچپن میں کھیلا کرتی تھی، الفاجڑا محسوس ہو رہا تھا، جھولے آئیوا میں بے دلی سے جھول رہے تھے۔ تو میگی نے خاموشی توڑتے ہوئے بات شروع کی، اتنے سالوں بعد تم واپس کیوں آئے؟ ایولن لمحہ بھر کو رکی۔ کیا اسے خط کا ذکر کرنا چاہیے؟ نہیں، ابھی نہیں۔ بس پرانی یادیں کھینچ لائیں، تم جانتی ہو کیسا ہوتا ہے۔ میگی نے اسے ایک جانچتی ہوئی نظر سے دیکھا مگر مزید کچھ نہ کہا۔ اس کی بجائے وہ پرانی دوستوں کے بارے میں بتانے لگی، کس کی شادی ہوئی، کون شہر چھوڑ گیا، کون ڈائنر میں کام کر رہا ہے۔ اس کی آواز خوشگوار تھی مگر کہیں نہ کہیں ایک کھنچاؤ موجود تھا، جیسے وہ کسی اہم بات کو نظر انداز کر رہی ہو۔ آخرکار جب وہ ایولن کے بچپن کے گھر کے سامنے پہنچے، اوک کے درختوں کے درمیان چھپا ایک سادہ سا اینٹوں کا مکان، میگی نے دھیرے سے کہا، یہاں اب کچھ ویسا نہیں رہا ایوی۔ کیا مطلب؟ یہاں لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں۔ کوئی سراغ نہیں، نہ لاشیں، نہ تاوان کی پرچیاں، بس غائب۔ ایولن جیسے ساکت ہو گئی، ہاتھ کار کے دروازے پر۔ لاپتہ؟ کب سے؟ پچھلے چند مہینوں سے۔ اب تک 6 لوگ، اور سب کسی نہ کسی طرح آپس میں جڑے ہوئے۔ میگی نے ہچکچاتے ہوئے آہستہ سے اضافہ کیا، تمہاری ماں کی پرانی دوست مسز ہارپر بھی ان میں شامل ہے۔ ایولن کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مسز ہارپر ہمیشہ اس سے مہربانی سے پیش آتی تھیں، اس کی ماں کے دیر تک کام کرنے پر گھر پر تازہ بیک کی ہوئی کوکیز لے آتی تھیں۔ وہ کس طرح کسی اور سے جاڑ ہو سکتی تھی؟ اس سے پہلے کہ ایولن مزید پوچھتی، میگی نے بات بدل دی۔ خیر، ڈیٹیکٹیو ہیرس کیس دیکھ رہا ہے۔ وہ پرانے مل کے بارے میں سوال کر رہا ہے، قصبے کے باہر عجیب باتیں، جیسے کسی نے رات میں وہاں عجیب روشنی دیکھی ہو۔ مل؟ ایولن نے ماتھا سکوڑ لیا۔ وہ جگہ تو ویران نہیں ہے۔ رسمی طور پر نہیں، مگر ہاں کوئی وہاں نہیں جاتا۔ بہت ڈرونی لگتی ہے۔ میگی نے اسے ایک گہری نظر سے دیکھا۔ وعدہ کرو وہاں مت جانا۔ ایولن نے سر ہلایا، اگرچہ اس کی دلچسپی جاگ چکی تھی۔ کوئی ایک پرانے مل کی پرواہ کیوں کرے؟ اور میگی اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی تھی؟ اسی رات جب ایولن اپنے سامان کھول رہی تھی، اسے اٹاری کے ایک کونے میں ایک پرانا فوٹو البم ملا۔ پیلے پڑے صفحات پلٹتے ہوئے وہ ایک تصویر پر راگ گئی جس میں اس کی ماں مل کے سامنے کھڑی تھی، وہی مل جس کے بارے میں میگی نے خبردار کیا تھا۔ پس منظر میں مدھم سی ایک سایہ شخصیت کھڑی تھی، جیسے انہیں دیکھ رہی ہو۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ کیا یہ سب لاپتہ لوگوں سے جاڑا تھا؟
इस खत से जो भी जवाब था, एक बात तो तय थी, विलुफ करीक इसे अभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अगली सुबह इविलन बारिश की बूंदों की टप टप सुनकर बेदार हुई, जो उसके कमरे की खिड़की पर पड़ रही थीं। पर्दों से छन कर आती हुई मध्यम सी सुरमई रोशनी उसके दिल पर छाई हुई बोझल कैफियत से मील खा रही थी। वो रात भर ठीक से सो ना सकी थी। फोटो एल्बम में नजर आने वाले धुंधले साए वाले शख्स के अक्स उसके ख्वाबों में घुल मिल गए थे, साथ ही खत में लिखी वो पुरअसरार तंबी भी जो उसके जहन में मुसलसल गूंजती रही, घर मत आओ। हर गुजरते लम्हे के साथ ये अल्फाज उसके जहन में ज्यादा ऊंचे सुनाई दे रहे थे, जैसे कोई मंतर हो। नाश्ते के कुछ देर बाद मैगी आ गई, हाथ में 2 कप गर्म काफी और चेहरे पर माजरत खा मुस्कुराहट लिए। गुजरी रात जो कुछ तुम्हें बताया, इसके लिए माजरत, इसने इविलन को एक कप पकड़ाते हुए कहा। मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। तुमने नहीं डराया, इविलन ने झूठ बोला, काफी के गर्म कप को अपने हाथों में थामते हुए। लेकिन मैं सोच रही थी, तुमने जो बताया गुमशुदगियों के बारे में और इस मिल के बारे में। मैगी का चेहरा संजीदा हो गया। हाँ, अजीब बात है ना? लोग कहते हैं रात को वहां जंगल के पास रोशनी झिलमिलाती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि अंदर से आवाजें मौसीकी सुनाई देती है, मगर कोई करीब जाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। बदकिस्मती की जगह है। बदकिस्मती? इविलन ने एक अब्रू उठाया। महज वहम? मैगी ने कंधे उचकाए। शायद दोनों। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ सच है, लेकिन वो बात अधूरी छोड़कर खिड़की की तरफ देखने लगी, जैसे वहां कुछ दिखाई दे जाएगा। इस कस्बे में कुछ तो गलत है आजकल। जब से लोग गायब होना शुरू हुए हैं, ऐसा लगता है सब सांस रोके हुए हैं। पड़ोसी आपस में बात नहीं करते, बच्चे गलियों में खेलते दिखाई नहीं देते। पूरे शहर पर एक खामोश दबाव सा है। इविलन ने सोचते हुए काफी का घूंट लिया। और डिटेक्टिव हीरेस? वो क्या समझते हैं? उनके पास थ्योरीज तो हैं, लेकिन वो ज्यादा कुछ बताते नहीं, मैगी ने साजिशी अंदाज में आहिस्ता आवाज में कहा। एक बार मुझसे पूछा कि क्या मैंने कभी सुना है कि पुराने वक्तों में मिल में कुछ रस्में होती थीं। मतलब खुफिया कस्बे के राज जैसे। रस्में? इविलन ने दोहराया। इसके जिस्म में कपकपी दौड़ गई, बावजूद उसके कि इसके हाथ में गर्म काफी थी। तुम्हारा मतलब जादू टोने जैसा कुछ? पता नहीं वो क्या कहना चाहते थे, मैगी ने एतराफ किया। लेकिन जब मैंने थोड़ी तहकीक की तो कुछ अजीब चीजें सामने आईं। पता चला कि दहाइयों पहले वहां एक ग्रुप मिलता था, खुद को दी कीपर्स कहते थे। कोई नहीं जानता वो क्या करते थे। अदालत में आग लगने के बाद ज्यादातर रिकॉर्ड तबाह हो गए थे। इविलन ने भनवें सुकेड़ी। अभी लोग उनमें दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? यही तो बात है, पता नहीं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, सब आपस में जाड़ा हुआ लगता है। जो लोग गायब हुए, उनके नाम पुरानी खबरों में बार बार आ रहे हैं, जैसे ये लोग किसी तरह इस जगह से बंधे हों। मैगी की बात सुनकर इविलन की नजरें मेज पर पड़े फोटो एल्बम पर जा ठहरें। इसने बेख्याली में एल्बम उठाया, सफ़ात पलटे, यहां तक कि मिल के सामने खड़ी अपनी मां की तस्वीर पर आ गई। कुछ नजर आया। मिल के दरवाजे की लकड़ी में एक मध्यम सा निशान कंदा था। ये महज मौसम का असर नहीं था, ये जानबूझ कर किया गया लगता था, जैसे कोई अलामत हो। मैगी, इविलन ने आहिस्ता से कहा, एल्बम उसकी तरफ घुमाते हुए, ये निशान तुम्हें पहचान आता है? मैगी ने तस्वीर को गौर से देखा। आम। अजीब है। लगता है जैसे वही निशान जो पिछले हफ्ते जंगल के किनारे एक दरख्त पर देखा था। मैंने समझा बच्चे शरारत कर रहे होंगे, लेकिन इविलन का दिल धड़कने लगा। अगर ये शरारत नहीं है तो? दोपहर के वक्त दिल में मौजूद एक अनजानी खुटक को नजरअंदाज न कर सकने की वजह से इविलन ने पैदल चलने का फैसला किया। इसने खुद को यकीन दिलाया कि महज दिमाग को ताज़ा करने के लिए जा रही है, लेकिन अंदर से वो जानती थी कि इसे जंगल खींच रहा था। वही जंगल जहां वो मिल तन्हा खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। मैगी ने इसे अकेले न जाने की मिन्नत की थी, लेकिन इविलन ने इसरार किया कि वो ठीक रहेगी। आखिर एक पुराना छोड़ा हुआ इमारत कितना खतरनाक हो सकता है। मिल तक जाने वाला रास्ता झाड़ियों से अलिफाग आया था और बारिश की वजह से कीचड़ से भरा हुआ था। चलते चलते हुआ ठंडी होती गई और परिंदों की चहचहाहट की जगह एक बोझल खामोशी ने ले ली। जब वो इस जगह पहुंची जहां मिल खड़ा था, सूरज दरख्तों के पीछे जा चुका था और लंबे साए जमीन पर फैल गए थे। इमारत बोसीदा थी, खिड़कियां टूटी हुई, दीवारें खस्ता हाल। फिर भी इसके अर्द गिर्द एक अजीब सा खतरे का एहसास मंडला रहा था, जैसे फिजा ही इसकी मौजूदगी के खिलाफ हो। अपने इरादे के बावजूद इविलन चंद लम्हे रुकी रही। तब इसकी नजर पड़ी वही निशान। मिल की दीवार की गिल्ली सड़ी लकड़ी पर गहराई से तराशे गए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तस्वीर में थे। इविलन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
इसने हाथ से इन पर हाथ फेरा, खुरदरे और नोकीले नकूश। ये महज खराशें नहीं थीं, ये बाकायदा नक्श थे, बामानी और गहरे। अचानक शाखों के टूटने की आवाज आई, कहीं करीब किसी के कदमों की चाप। खौफ की लहर उसके रगों में दौड़ गई। क्या कोई इसका पीछा कर रहा था? आबत्तर कोई इसे देख रहा था। तभी एक आवाज ने खामोशी को चीर दिया, मिस कार्टर। वो चौंक कर पलटी। दरख्तों की ओट से डिटेक्टिव हिरेस नमूदार हुए, उनका लंबा कोट हवा में लहरा रहा था। उनकी तेज नजरें इर्दगिर्द घूमे, फिर इविलन पर ठहर गईं। आप यहां क्या कर रही है? मैं भी अब से यही सवाल पूछ सकती हूं, इविलन ने बमुश्किल सांस बहाल करते हुए कहा। हिरेस आहिस्ता से आगे बढ़े, उनके चेहरे पर तासुरात पड़ना मुश्किल था। ये जगह महफूज नहीं। आपको यहां नहीं आना चाहिए था। मुझे सिर्फ तजस्सुस था, इविलन ने दिफाई लहजे में कहा। गुमशुदगियों के बारे में, उन निशानात के बारे में, और ये जानने के लिए कि लोग इस जगह से इतना खौफजदा क्यों हैं। चंद लम्हे हिरेस खामोश रहे। फिर एक गहरी सांस लेकर मिल की तरफ इशारा किया। मेरे साथ आएं। आपको कुछ दुखाना है? हिचकिचाते हुए इविलन उनके पीछे अंदर दाखिल हुई। इमारत के अंदर अंधेरा था, सिर्फ टूटी हुई खिड़कियों से आती मध्यम रोशनी की किरणें थीं। हवा में गर्द के ज़र्रात मुअल्लक थे और बोसीदगी की महक गहरी थी। लेकिन जिस चीज़ ने इविलन को मुकम्मल तौर पर रोक दिया वो मंजर था। मुख्तलिफ अशिया ज़मीन पर बिखरी हुई थीं, जैकेट्स, जूते, बस्ते, सब कुछ जूं का तूं, जैसे उनके मालिक अचानक गायब हो गए हों। ये हकीकत नहीं हो सकती, वो इविलन ने कांपती आवाज में कहा। ये हकीकत है, हिरेस ने संजीदगी से जवाब दिया। और ये तो बस शुरुआत है। ये अल्फाज जो डिटेक्टिव हिरेस ने कहे थे फिजा में बोझ बनकर मुअल्लक हो गए। इवलीन की नज़रें इस पुरानी मिल की फर्श पर बिखरी हुई छोड़ दी गई चीज़ों पर जिमी रही। हर शय अपनी एक कहानी सुना रही थी, एक जिंदगी जो बीच में टूट गई हो, एक शख्स जो बना किसी वजाहत के मिट गया हो। इवलीन के पेट में ऐंठन-सी हुई और उसने लाशूरी तौर पर एक कदम पीछे हटाया, मगर हिरेस ने मजबूती से इसके कंधे पर हाथ रख दिया। एहतियात से, इसने धीमे लहजे में खबरदार किया। हमें नहीं पता यहां नीचे क्या है। इवलीन ने चौंक कर इसे देखा, इसकी आवाज में मौजूद शिद्दत ने इसे हैरान कर दिया। आपका क्या मतलब है? यहां नीचे क्या है? हिरेस ने जवाब देने के बजाय झककर एक पुराने जैकेट के करीब से टार्च निकाली और इसे ऑन किया। इसकी रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी। टार्च की शुआओं में एक छुपा हुआ दरवाज़ा नजर आया जो मलबे के ढेर के नीचे दबा हुआ था। हिरेस ने अपने बूट के नोक से इसे धीरे से खोला। जंग आलूद कुंडियां हल्की आवाज में करा उठीं और एक तंग सीढ़ी अंधेरे में नीचे उतरती दिखाई दी। ये दरवाज़ा पिछले हफ्ते यहां नहीं था, हिरेस ने जैसे खुद से कहा। जिस किसी ने भी इस जगह का इस्तेमाल किया है वो अपने निशान मिटा रहे हैं। इवलीन कुछ लम्हे हिचकिचा, तजस्सुस और खौफ के बीच उलझी हुई। क्या वाकई हमें नीचे जाना चाहिए? हिरेस ने संजीदगी से कहा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर हमें जवाब चाहिए तो वो यही मिलेंगे। न चाहते हुए भी इवलीन ने सर हिलाया और उसके पीछे सीढ़ियां उतरने लगी। लकड़ी के तख्तों पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हुआ नीचे जाते जाते सर्द और नम हो गई थी और इसमें मिट्टी और सीलन की बो घुली हुई थी। नीचे पहुंचकर वो एक तवील तंग राहदारी में खड़े थे जिसकी दीवारें बोसीदा पत्थरों की थीं। राहदारी के साथ जले हुए मशलें हौलनाक साये पैदा कर रही थीं जो जैसे नाच रहे हों, जिंदा हों। जैसे जैसे वो इस ज़ेरे ज़मीन भूल भिलिया में आगे बढ़ते गए, इवलीन की नज़र दीवारों पर बने अजीब नक्श ओ निगार पर पड़ी। ये निशान बाहर मिल के पास देखे निशानात से मिलते जलते थे, लेकिन कहीं ज्यादा पेचीदा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मध्यम रोशनी में धीरे धीरे धड़क रहे हों, जैसे उनकी मौजूदगी का जवाब दे रहे हों। इवलीन बेसाख्ता एक निशान को छूने लगी, मगर हिरेस ने इसकी कलाई पकड़ ली। नहीं, इसने सख्ती से कहा। हमें नहीं मालूम ये क्या है या क्या करते हैं। इवलीन ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया। बेचैनी के बावजूद चिड़चिड़ाहट इसके लहजे में आ गई। आप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे आपको मुझसे ज्यादा मालूम हो। आप मुझे क्या नहीं बता रहे? हिरेस चंद लम्हे रुका, इसका जबड़ा भींच गया। बस यूं समझो ये पहला मौका नहीं कि मैंने ऐसे निशान देखे हैं, और हर बार कुछ बारा हुआ है। इवलीन मजीद कुछ पूछने ही वाली थी कि अचानक एक मध्यम सी सरगोशी सुनाई दी, पानी टपकने की आवाज पर भी हल्की, जैसे चारों तरफ से आ रही हो, उनके इर्द-गिर्द लिपटती हुई। इवलीन साकित हो गई, इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या था? वो धीरे से बोली। हिरेस ने कोई जवाब ना दिया। इसने अपनी टार्च उठाकर राहदारी में आगे रोशनी डाली।
रोशनी एक वजनी लकड़ी के दरवाजे पर ठहरी जिस पर मजीद नक्श और निगार बने हुए थे, मगर ये निशानात दूसरे निशानात से मुख्तलिफ थे। ये मध्यम सी रोशनी में धड़क रहे थे, सरगोशियों की ले के साथ। हमें वहीं जाना होगा, हिरेस ने अज़्म भरे लहजे में कहा। अपने दिल की आवाज़ के खिलाफ इवलीन इसके पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे वो नज़दीक पहुंचे, सरगोशियां तेज हो गईं और टूटे फूटे अल्फाज में बदलने लगे। चले जाओ, भूल जाओ, कभी वापस न आओ। ये सब ठीक नहीं लग रहा, इवलीन ने अपने बेग का पटा मजबूती से थामते हुए कहा। शायद हमें। इसके अल्फाज अधूरे रह गए जब जमीन जोर से हिलने लगी, छत से मिट्टी झड़ने लगी, दीवारें कराहने लगे। हिरेस ने इवलीन का बाजू पकड़कर इसे दरवाजे की तरफ धकेला, ठीक इसी वक्त जब उनके पीछे की छत का एक हिस्सा गिर गया और उनके वापसी के रास्ते को बंद कर दिया। कम बख्त, हिरेस ने मलबे को बेसूद ठोकर मारते हुए कहा। हम फंस गए हैं। इवलीन की नज़र दोबारा इस रोशन दरवाजे पर पड़ी। इसके ज़हन में ख्यालात गर्दिश करने लगे। वापसी मुमकिन न थी तो अब रास्ता सिर्फ आगे था। इसने अपनी बच्ची खिंची हिम्मत जमा की और दरवाजे पर हाथ रखा, जो हैरत अंगेज तौर पर आसानी से खिल गया। अंदर वो एक वसीओ अरीज कमरे में दाखिल हुए, जिसकी दीवारों में जुड़े नीलगों क्रिस्टल से अजीब सी रोशनी फूट रही थी। कमरे के वस्त में एक कुर्बानगाह जैसा ढांचा था, जिसके इर्दगिर्द कदीम अशिया और दस्तावेजात बिखरी थीं। उनके बीच तस्वीरें भी पड़ी थीं, चेहरे जिन्हें इवलीन ने गुमशुदा अफराद की खबरों में देखा था। ओ खुदाया, ओ वो धीरे से बोली करीब जाकर। यही जगह है जहां वो उन्हें ला रहे थी। मगर वो मजीद कुछ देख पाती इससे पहले ही सरगोशियां दोबारा गूंज उठीं, इस बार कहीं ज्यादा बुलंद और गुस्से से भरी हुई। साए मोड़ने तड़पने लगे और इंसानों जैसे धुंधले वजूद में ढलकर उनकी जानिब बढ़ने लगे। हमें यहां से निकलना होगा अभी, हिरेस चलाया इवलीन का बाजू दोबारा पकड़ते हुए। वो कमरे के दूसरे सिरे की तरफ भागे, जहां एक और दरवाजा नजर आ रहा था। मगर जैसे ही वो इस तक पहुंचे, एक शख्स उनके सामने आ गया, काली चादर में लिपटा हुआ, चेहरा निकाब में छुपा हुआ। इसकी आवाज पुरसुकून मगर सर्द थी। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था इवलीन। काली चादर में लिपटा हुआ शख्स चंद कदम आगे बढ़ा। इसकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून था, जो इर्दगिर्द फैली हुई अफरा तफरी से मुतसादिम था। इवलीन साकित हो गई, सांस इसके हल्क में अटक गई जब इसने वो आवाज पहचानी। धीमी तोली हुई, मगर इसमें कुछ ऐसा मानूस था जिससे इसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। अंकल रेमोंड, वो बमुश्किल सरगोशी कर सकी हैरत इसके लहजे में छलक रही थी। इसकी माँ का जुदा भाई सालों पहले गायब हो गया था, इस वक्त जब इवलीन ने विलो क्रीक छोड़ा भी ना था। इसने समझा था कि वो मर चुका है, अकम अस कम बहुत दूर जा चुका है। मगर अब इसे यहां देखकर, उनके और आज़ादी के बीच खड़ा देखकर इवलीन के बिखरे असाब में एक झटका सा लगा। रेमोंड ने अपना निकाब हटाया, तेज नकूश और सफ़ेद होते बाल नुमाया हुए। इसकी आंखें सर्द और हिसाबी अंदाज में इवलीन पर जिम गईं। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, इसने दोबारा कहा। इसके अल्फाज ऐसे महसूस हुए जैसे कोई फैसला सुना दिया गया हो। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? इवलीन ने पूछा। गुस्सा एक लम्हे के लिए खौफ पर गालिब आ गया। ये सब किया है? अपने इन लोगों के साथ किया। रेमोंड के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर इसमें जरा सी भी गर्मजोशी ना थी। ये बात मेरे अमाल की नहीं है इवलीन। ये इस वर्षे की हिफाजत की बात है जो हमारे खानदान के पास है, और ये कि विलो क्रीक कायम रहे। किस चीज से बचाना चाहते हैं आप इसे? हिरेस ने मुदाखलत की इवलीन के सामने मुहाफजन्ना अंदाज में खड़े होते हुए। इसका हाथ अपनी पिस्टल के होलस्टर के करीब था, हालांकि इवलीन जानती थी कि यहां जिस कुवत का सामना था, गोली शायद कुछ ना कर पाए। बाहर वालों से रेमोंड ने सादगी से कहा और इर्दगिर्द पड़ी कदीम अशिया की तरफ इशारा किया। नस्लों से दीकीपर्स इस कस्बे की हिफाजत करते आए हैं, उन लोगों से जो इसे आलूदा कर दें। बाहर वाले तब्दीली लाते हैं, बिगाड़, वो इन जड़ों को जहर देते हैं जिन्हें हम मुकद्दस समझते हैं। इवलीन ने सर नफी में हिलाया, इसकी बातों को समझने की कोशिश करते हुए। अब कत्ल की बात कर रहे हैं रेमोंड, कुर्बानियों की। ये पागलपिन है, ये बका है। रेमोंड ने सख्ती से दुरुस्त किया। हर नस्ल को तवाजुन कायम रखने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। तुम्हारी माँ ये समझती थी कभी? जब तक कि वो यहां से भागने की कोशिश न करने लगी, इसकी नजरें लम्हा भर के लिए नरम पड़ गईं, जैसे कोई अफसोस हो। इसने सोचा कि तुम्हें ले जाकर तुम्हें अपने मुकद्दर से बचा सकती है, मगर खून खून को पुकार लेता है इवलीन। तुम्हें वापस आना ही था। इवलीन की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई, जैसे पुरानी यादों के टुकड़े ज़हन में उभर आए हों। इसकी माँ की रात गए फोन पर सरगोशी दबी दबी बहसें, और वो लम्हे जब वो पीछे मुड़कर देखती जैसे किसी के ताकुब की तवक्को हो।
क्या वो डी कीपर्स के बारे में जानती थी? रेमोंड के बारे में? इवलीन कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक मग दरवाजे में नमूदार हुई, हांपत्ती हुई और आंखों में खौफ लिए। लोगों, मसला है, वो जोर से चलाई हाथों से इशारा करते हुए। वो आ रहे हैं। यकीनन चैम्बर के बाहर फिर से साए हिलने लगे, इंसानों जैसे वजूद में ढलते हुए, गैर फितरी तेजी से हरकत करते हुए। सरगोशियां भी लूट आईं, इस बार और ज्यादा बुलंद और इसरार भरी, पूरे माहौल में शोर की मानिंद गूंजने लगे। हमारे पास वक्त नहीं है, हिरेस ने गुर्राते हुए इवलीन को बाहर की जानिब खींचा। चिल्लू! मगर रेमोंड उनके रास्ते में खड़ा हो गया। इसने हाथ उठाया जिसमें एक अंगूठी पहनी थी, जिस पर वही रोशन निशानात कंदा थे। इसके मुंह से एक अजनबी जुबान में एक लफ्ज निकला और फौरन ही साए रुक गए, चैम्बर की सरहद पर हिचकिचाते हुए। तुम इस जगह से जिंदा वापस नहीं जाओगी जब तक मैं इजाजत ना दूं, रेमोंड ने कहा। इसकी आवाज में इख्तियार टपक रहा था। अक्ल से फैसला करो इवलीन। हमारे साथ शामिल हो जाओ या अंजाम भगतो। इवलीन के हाथ मुट्ठियों में बंद हो गए, गुस्से और बेबसी के बीच फंसे हुए। इसने हिरेस की तरफ देखा, जिसका चेहरा सख्त मगर पुरज़्न था, फिर मग की तरफ, जो खौफ के बावजूद हौसला अफजा अंदाज में सर हिला रही थी। जो भी फैसला लेना था वो अकेले ना लेगी। मैं किसी का हिस्सा नहीं बन रही, इवलीन ने कहा, अपने लहजे में ऐसी पुख्तगी कि वो खुद भी हैरान रह गई। ये सब आज खत्म हो रहा है। ये कहकर इसने कुर्बानगाह पर पड़ा हुआ एक क्रिस्टल का टुकड़ा उठा लिया। जैसे ही इसने इसे बुलंद किया, इसकी सतह और रोशन हो गई और साए पीछे हटने लगे जैसे जल गए हों। मौका देखकर हिरेस ने रेमोंड को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जबकि मग ने इवलीन को बाहर की तरफ खींचा। वो तेजी से एक और बिल खाती राहदारी में भागने लगे। पीछे चैम्बर में हंगामा मच गया, सरगोशियां चीखों में बदल गईं, दीवारें लरजने लगें। इवलीन ने एक लम्हे के लिए पीछे मोड़कर देखा तो देखा कि गार खुद पर मुनहदिम हो रहा है, कुर्बानगाह और रेमोंड को मलबे के नीचे दफन करता हुआ। चंद लम्हों बाद वो खिली फिजा में निकल आए, हाँपते हुए, पसीने और मिट्टी से लथपथ। मिल के पीछे से धमाके की आवाज आई और पूरी इमारत जमीन बोस हो गई। धूल और मलबे का बादल फिजा में फैल गया। कुछ देर तक कोई कुछ न बोला। वो बस वहीं खड़े रहे, कांपते थके हारे, खामोशी से मलबे को देखते रहे। आखिरकार मग ने खामोशी तोड़ी। क्या सब खत्म हो गया? इवलीन ने हिरेस की तरफ देखा, जिसने थके थके अंदाज में कंधे झटक दिए। फिलहाल, इसने कहा, मगर मेरा दिल कहता है इस कस्बे के कुछ राज अभी बाकी है। सुबह के सूरज ने धूल और धुएं की धुंध को चीरते हुए मिल के मलबे पर हल्की सुनहरी रोशनी बखेरी। इवलीन सफाई के किनारे खड़ी थी, अपने बाजू खुद के गिर्द लपेटे, और मुनहदिम इमारत को घोर रही थी। ये यकीन करना मुश्किल था कि चंद घंटे पहले ये जगह राजों और हौलनाकियों की भूल भिलियां थी, एक ऐसी जगह जहां जिंदगियां छीनी गईं और कुर्बानियां दी गईं किसी बिगड़ी हुई मीरास के नाम पर। अब वहां सिर्फ मलबा और राख बच्ची थी। डिटेक्टिव हैरिस आहिस्ता से इसके करीब आया। इसके चेहरे पर थकन के आसार नुमायां थे, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा भी था जो सुकून से मुशाबहत रखता था। हमें इस जगह को महफूज करना होगा, इसने खंडरात की तरफ इशारा करते हुए कहा। फॉरेंसिक टीम को जो कुछ बचा है, इसकी जांच पड़ताल करनी होगी। लेकिन फिलहाल वो रुक गया, इसकी आवाज नर्म हो गई। तुमने अच्छा किया इवलीन, तुमने उन्हें रोक दिया। इवलीन ने सर हिलाया, इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। मैंने कुछ नहीं रोका, मैं बस फिर से भाग गई। इसकी आवाज में गहरे एहसास, जुर्म की परछाइयां थीं। वो अपनी मां रेमोंड और उन सब लोगों के बारे में सोचने लगी जो उन फैसलों की वजह से गायब हो गए, जिन्हें वो पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। क्या इसने वाकई दी कीपर्स के राज का खात्मा किया था, बस इसे कुछ देर के लिए मुअख्खर कर दिया था? तुम जिंदा हो, मैगी ने मुदाखलत करते हुए कहा, इसके पहलू में आ खड़ी हुई। यही काफी है, और तुमने सच बाहर लाकर सबको दिखाया, ये कम नहीं। इवलीन ने कमजोर सी मुस्कुराहट की, मैगी की गैर मुतजलजल हिमायत पर शुक्रगुजार। लेकिन जो कुछ वो जान चुकी थी, इसका बोझ इसके सीने पर भारी था। फिरका शायद खत्म हो चुका था, लेकिन उनके निशान, इवलीन, विलो क्रीक और उन सब के लिए जो उनके अंधेरे से छुए गए, हमेशा बाकी रहेंगे। आने वाले दिनों में विलो क्रीक में जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। रेमोंड मिल के मलबे के नीचे दफन हो चुका था, और दी कीपर्स के कई दूसरे अरकान डिटेक्टिव हैरिस की क़यादत में किए गए छापों के दौरान गिरफ्तार हो चुके थे। शहर ने आहिस्ता आहिस्ता शिफा पाना शुरू कर दी। मैगी ने अपना इंकिशाफाती मजमून शाये किया, जिसमें फ़िरक़े की तारीख और हालिया गुमशुदगियों के साथ उसके ताल्लुकात को बेनकाब किया। कहानी ने कौमी सतह पर तवज्जो हासिल की, और बाहर से तहकीकाती एजेंसियां इस छोटे से शहर में जवाब तलाश करने आ पहुंचीं।
ایولین کے لیے ولو کریک میں رکنا اب ماضی کے سحر سے زیادہ نجات کا باعث بن گیا تھا۔ اس نے عارضی طور پر رکنے کا فیصلہ کیا، ہیرس کی مدد کرتے ہوئے کیس کے باقی ماندہ ٹکڑے جوڑنے میں اور مقامی رہنماؤں کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اندر اعتماد بحال کرنے میں۔ اس نے ان خاندانوں سے بھی رابطہ کیا جن کے پیارے لاپتہ ہو گئے تھے، انہیں جتنی تسلی دے سکتی تھی دی۔ یہ آسان نہیں تھا، ہر گفتگو پرانے زخموں کو ہرا کر دیتی تھی، لیکن اسے ضروری محسوس ہوتا تھا۔ ایک شام جب وہ اپنے بچپن کی جانی پہچانی گلیوں میں چل رہی تھی، ایولین خود کو پرانے ہارپر ہاؤس کے باہر کھڑا پایا۔ مسز ہارپر کا باغ اب جنگلی جھاڑیوں میں گھرا ہوا تھا، پھولوں کی جگہ خود رو گھاس اگائی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا، نصف امید کے ساتھ کہ شاید کوئی جواب نہ دے، لیکن حیرت انگیز طور پر دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور ایک کمزور سی شفیق آنکھوں والی بڑیا سامنے آ گئی۔ ایولین، عورت نے پوچھا، اس کی آواز پہچان کے مارے کانپ رہی تھی۔ کیا یہ تم ہو؟ جی مسز ہارپر، ایولین نے نرمی سے جواب دیا۔ معاف کیجیے گا، اتنی دیر ہو گئی اب سے ملنے میں۔ مسز ہارپر نے اسے اندر بلایا، چائے پیش کی اور اس کی ماں کی کہانیاں سنانے لگے۔ باتوں کے دوران ایولین کو احساس ہوا کہ وہ ان روابط کو کتنا یاد کرتی تھی، مشترکہ یادوں کی گرمی اور اس یقین کا سکون کہ وہ کسی جگہ سے تعلق رکھتی ہے۔ برسوں تک وہ ولو کریک سے بھاگتی رہی، قائل کہ یہاں صرف درد ہے، لیکن اب وہ اس کی خوبصورتی بھی دیکھ سکتی تھی، یہاں کے لوگوں کی مزاحمت، مصیبتوں میں ڈھلا ہوا حوصلہ۔ جب سردی آئی، ایولین نے اپنے فیصلے کے ساتھ صلح کر لی کہ وہ یہاں کچھ اور وقت کے لیے رکے گی۔ اس نے بیکری کے اوپر ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ کرائے پر لیا، اسے کتابوں اور خوشگوار لمحوں کی تصویروں سے سجا دیا۔ پرسکون راتوں میں وہ کھڑکی کے پاس بیٹھتی، دیکھتی کہ برف شہر کو سفید چادر میں لپیٹ لیتی ہے۔ یہاں کا سکون اس کے لیے غیر متوقع تھا، لیکن ہر سکون کے ساتھ سائے بھی آتے ہیں۔ کبھی کبھار جب ہوا درختوں کے درمیان سیٹی بجاتی، چاند آسمان پر نیچے جھکتا، تو ایولین کو کبھی باڑ پر کندہ نشانات نظر آتے، ہوا کے جھونکوں میں مدھم سرگوشیاں سنائی دیتی۔ اس نے یہ کسی کو نہیں بتایا، نہ میگی کو نہ ہیرس کو۔ کچھ چیزیں اس نے فیصلہ کیا کہنے کے لیے نہیں ہوتی۔ مہینوں بعد جب بہار نے زمین کو پگھلنا شروع کیا، ایولین کو ایک اور خط ملا۔ یہ خط اس کے نام صاف لکھائی میں تھا اور خاموشی سے اس کے میل باکس میں پہنچا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا جب اس نے لفافہ کھولا، آدھی امید اور آدھی خوف کے ساتھ کہ کہیں یہ کوئی نیا انتباہ نہ ہو۔ لیکن اندر ایک ہی جملہ درج تھا، ماضی دفن ہو چکا ہے مگر مستقبل تمہارے لکھنے کے لیے ہے۔ ایولین نے خط کو احتیاط سے تہہ کیا اور سنبھال کر رکھ دیا، اس بات کا یقین نہ کرتے ہوئے کہ یہ اطمینان دینے کے لیے تھا، تنبیہ کرنے کے لیے۔ لیکن ایک بات وہ جان گئی تھی، ولو کریک ہمیشہ اس کی کہانی کا حصہ رہے گا، چاہے وہ یہاں ہمیشہ رہے یا کبھی آگے بڑھ جائے۔ یہ شہر اور اس کے راز ہمیشہ اس کے اندر زندہ رہیں گے، اسے وہ شخص بنانے میں مدد کرتے ہوئے جس کا انتخاب وہ خود کرے گی۔ جب وہ پارک کی طرف چلی جہاں بچپن میں کھیلا کرتی تھی، ایولین کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ جھولے ہوا میں ہلکے ہلکے جھول رہے تھے، ان کی زنجیریں پرانی ہڈیوں کی طرح چرچرا رہی تھیں۔ وہ ایک جھولے پر بیٹھ گئی، آنکھیں بند کر کے، جب سورج کی روشنی نے اس کے چہرے کو گرم کیا۔ سالوں بعد پہلی بار وہ امید محسوس کر رہی تھی، جو کچھ بھی آگے ہو اب وہ اسے خوش دلی سے قبول کرنے کو تیار تھی، ایک ایسی شخص کے طور پر جو ماضی سے بھاگ نہیں رہی بلکہ نئے آغاز کے لیے پرعزم ہے۔